plane of surface to form a closed path from a fixed point, and the fixed point is known as a center of a circle, and a fixed distance is known as a radius of that circle. यानी कि उस सर्कल को आप जो डिफाइन कर रहे हो वो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का एक प्लेन ऑफ सरफेस में, जिससे एक क्लोज पाथ क्रिएट होता है, और उस क्लोज पाथ के जो फिक्स पॉइंट होता है उस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस क्रिएट होती है दैट शुड बी कॉल्ड एज अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन दैट सर्कल. That should be called as a circle, and it is denoted by C O comma R. R is a radius of that circle and O is the center of that circle. Okay, now we have discussed the another point on a circle. We have take a circle with fixed point O, which is called as a center of that circle. Take 2 points on a circle and join these 2 points, and the line segment is formed as the chord. उस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है जो सर्कल को वो कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? कॉर्ड. And further, these 2 points join together and it passes from the center of a circle, and the length is known as a diameter of that circle. यानी कि वो जो लेंथ बनती है उस लेंथ को भी हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल होती है. और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ डायमीटर. यानी कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी सर्कल की दैट शुड बी कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ दैट सर्कल. Now another 3 points we have discussed. Firstly, the arc, the shortest path is called as a minor arc, and the 2 points adjoined at the length is called major arc. यानी इस सर्कल के 2 पार्ट अगर हम कट कर दें तो एक पार्ट बेटा किस में डिवाइड हो जाता है? माइनर आर्क में, और अदर पार्ट जो डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क. ये जो लेंथ होती है क्लोज पैड से जो आपकी लेंथ बनती है इसको हम लोग बेटा आर्क बोलते हैं. इसको माइनर आर्क और इसको बेटा मेजर आर्क. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर की डिफाइन ऐसे कहा जाता है, द एरिया enclosed by the arc and the radii of a circle is called minor sector. Means radii of a circle, ये है, and OB are the radii of a circle and AB as a minor arc, and the area encloses by these 2 part is known as a minor sector. उसको हम लोग बेटा माइनर सेक्टर बोलते हैं. यानी कि एरिया इनक्लोज किया जाए रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क के थ्रू, तो जो भी इनक्लोज पाथ होगा उस इनक्लोजिंग पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर बोलते हैं. अगर ये छोटे पार्ट का होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, जो अपर पार्ट होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे. एनी प्रॉब्लम? से एनीथिंग? एनी प्रॉब्लम बेटा? हेलो? Now we have discussed the segment. The segment is defined as the area encloses by the arc and the chord of a circle is called as segment. Means
The area enclosed by the arc and the chord of a circle is called as segment. These two, this is the chord of a circle and this is the arc of a circle, and the area enclosed by these two parts is known as a segment. This is the shortest path covered by these two, that is should be called as minor segment, and the left part of a circle is called major segment. यानी कि जो हिस्सा ये जो कवर्ड कर रहा है ये पहले उसका क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, और ये जो उसका सर्कल का बाकी का हिस्सा जो होगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट. Now we have to discuss the tangent of a circle. What means of tangent of a circle? Tangent of a circle, when a line touches a one common point, तो वो जो common point पे touch कर रहा है, that should be called tangent point, and the line is known as tangent line. और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट लाइन बोलेंगे. क्लियर है? यानी सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है टेंजेंट का, दैट शुड बी कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट, एंड द लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? नाउ we have to discuss the first theorem of the circle based on tangent of a circle. Take a circle with center O and take a tangent line which touches the circle on a point P, and this is the line, tangent line L, and this is your point O. We have discussed here what it say. It say that if a line segment OP द टेंजेंट पॉइंट को टच करने से जो ये लेंथ होगी ये क्या होगी, उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी. ये आपको डिस्कस करना है, उस थ्योरम का यूज भी करना है आगे. मींस OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, means angle OPA becomes 90 degree, and OP as a shortest length of a circle is called as radius of that circle. मतलब सेंटर से जो लाइन पास होगी वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और वो जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी बेटे, रेडियस होगी सर्कल की. क्या होगी बेटे, रेडियस होगी सर्कल की. हाँ, अब आपने एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड ऑफ अ सर्कल ए एंड टेक अ पॉइंट बी ऑन अ सर्कल बी. क्लियर? तो ये आपको फिगर से शो हो रहा है कि ओ ए इज ग्रेटर देन ओ पी एंड ओ ए इज आल्सो ग्रेटर देन ओ बी बाय द फिगर. ठीक है? और ओ पी एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ अ सर्कल. ये आपको डेफिनेशन सर्कल की पता है. मीन्स ओ ए इज ग्रेटर देन ओ पी. मीन्स क्या है, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम a center okay
OP is the shortest length of the circle, means it is the perpendicular on a line L. ये आपको बताना था कि ये जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर भी है किसके ऊपर, आपके टेंजेंट ऑफ अ लाइन के। क्लियर है बेटा? दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? नाउ we have to prove that these two tangent points are equidistant from the external point of a circle। यानी ये जो टेंजेंट लाइन है वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो इक्वल टेंजेंट्स हैं। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ की तरफ फॉरवर्डिंग हो। टेक two triangles AOP एंड BOP। टू ट्राइंगल्स ले लिए। अब आपको ये पता है कि एंगल OAP एंड एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल्ड है। आपको ये भी पता है OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB। क्लियर? नेक्स्ट, OP इज इक्वल टू PO। ये बेटा क्या है? कॉमन हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज है उस दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के। एंड लास्ट इज OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है बेटा? रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, सर्कल की रेडियस है। क्लियर? तो देन बाई दी RHS प्रॉपर्टी ऑफ टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल की RHS प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू BOP। दोनों ट्राइंगल को आपने क्या प्रूफ कर लिया बेटे? कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया। क्लास 9 से आप रीड आउट करते आ रहे हो। इट मीन्स दैट AP इज इक्वल टू BP और PA इज इक्वल टू PB। चाहे AP कहें चाहे PA कहें, बात एक। BP कहें या PB कहें, बात एक। ये क्या हो गया? बाई CPCT। और CPCT का मीन्स बेटा आपको ऑलरेडी पता है, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। C फॉर करस्पॉन्डिंग, C फॉर पार्ट, C फॉर कॉन्ग्रेंस, T फॉर ट्राइंगल। Corresponding part of congruence triangle. This is the property on the basis of two triangle are congruent, then you have to use by the corresponding part of congruence triangle. Any doubts? Now we have to take another form, APO, angle APO and angle BPO is also equal बाई CPCT। CPCT से ये भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर? एंड एंगल AOP एंड एंगल BOP इज आल्सो इक्वल बाई CPCT। एनी प्रॉब्लम? मीन्स ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? ये आपका वन थ्योरम के थ्रू थ्री थ्योरम्स आपकी प्रूव हो, यानी एक थ्योरम के कंपैरेटिवली आपने थ्री थ्योरम्स को प्रूव कर ली। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है बेटे?
Next one, take a circle and a point P outside of a circle. Now we have to prove that means angle AOB and angle APB. Angle AOB और एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूफ करना है इसमें. और यू नो वेरी वेल OA एंड OB ये आपके गिवन में है कि OA is perpendicular on PA and OB is perpendicular on PB. Means that angle OAP and angle OBP is equals to 90 डिग्री. ये वेल नोन है. अब आ जाओ इन अ क्वाड्रिलेटरल OAPB. OAPB OAPB तो बेटा आपको मालूम है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इट से एंगल OAP एंगल APB एंगल PBO या OBP और एंगल AOB किसके इक्वल होगा बेटे 360 के. आपको वेल नोन है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स 360 डिग्री. OAP and OBP put the value of that. थ्री सिक्सटी में बेटा 90 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 180 और उसको माइनस कर देंगे तो आपका देखिए आ गया एंगल APB और एंगल AOB का जो सम है बेटा वो कितना आपको आ गया 180 डिग्री. 180 डिग्री. ये भी आपकी एक थ्योरम है. अब इसके ऊपर बेसिकली अगर कोई क्वेश्चंस आपको गिवन हो तब आप क्या करेंगे. जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो बार बार कनिष्का अपना व्यू लेकर के आ जाती हैं, बाहर नहीं जा पा रही हैं. Now we take an example. P is the outside of the point. ये एंगल आपको पता है